More and more details are emerging how Atiq Ahmed, the gangster turned Neta, tormented people across Uttar Pradesh, tortured them, and this if they tried to challenge him. Now, new footage has emerged of how one such individual was brutally targeted, assaulted. We advise our viewers discretion for this. We have tried to mosaic as much as possible, but it's important to remind you what Atiq Ahmed represented. Look on your screens right now. The gang members torturing a young man. This video was found in Atiq Ahmed's son Asad's mobile phone. The cops suspect it was shot and recorded at his residence. The gangster seen stripping and thrashing a young man who sits helplessly on the floor. Reason not clear what exactly happened, but look how they were running a mafia raj of themselves of torturing and assaulting people. This video has confirmed that Atiq's third son Asad, who was later killed in an encounter recently, was actively involved in his father's illegal gangster criminal activities. They were running a parallel court as it appeared, torturing people. In this visual as well, you can see a man who's been stripped and is being beaten. Pictures emerging showing that there were posing with the text of Dawn written on his face, flaunting that he was a criminal, flaunting that he had weapons, and that clearly had no shame about it, unabashedly portraying himself as the Dawn of the area. These images coming in from the mobile phone, which have now, of course, are with the custody of the cops, but there's also a poster behind him. Read carefully. Land of the ultimate gangsters, he says. If this is not evidence enough, what else will it be? Let's go across to Arvind Oja for the latest on that. Arvind, ये बताना जरूरी नहीं होगा शायद काफी लोगों के लिए कि क्यों असद का और अतीक अहमद का और अशरफ का क्या बैकग्राउंड था, लेकिन जब मोबाइल फोन से ही ऐसे वीडियोस निकलते हैं तो ये तो प्रूफ है कि किस तरह से वो मारते पीटते थे किसी को भी। जी बिल्कुल, देखिए, और ये इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है वीडियो और पिक्चर्स। ये असद के मोबाइल फोन से ही प्रयागराज पुलिस ने रिकवर किया है। सबसे पहले मैं पूजा आपको बताना चाहता हूं, इंडिया टुडे ने जो ब्रेक किया था अतीक अहमद का वो धमकी भरा मैसेज जो उसने साबरमती जेल से एक बिल्डर को भेजा था। उसमें मैसेज क्या लिखा था आपको याद होगा। अतीक अहमद ने कहा था कि मेरे बेटे न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे। अब इस तस्वीर को देखिए, वो जो बनाना चाहता था बेटों को वो बन भी रहे थे। असद के फ्लैट का ये वीडियो है जिसमें एक शख्स की बकायदा कपड़े उतार के पिटाई की जा रही है। सोर्स ये बताते हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर, खासतौर से व्हाट्सएप ग्रुप जो असद ने बना रखा था उसमें डाला जाता था और अपना रसूख, अपना डर वो दिखाया जाता था। जबकि एक तस्वीर इंडिया टुडे के पास है जो असद के मोबाइल फोन से रिकवर हुई है। कॉलेज के वक्त में कॉलेज का फेयरवेल पार्टी का वो पिक्चर है जिसमें उसके गाल पे लिखा हुआ है डॉन। यानी कहीं ना कहीं कॉलेज के टाइम से उसका जो माइंडसेट था वो जिस तरह से उसके फादर थे उस माइंडसेट पे वो चल रहा था, उसे डॉन बनना था। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ है द लैंड ऑफ अल्टीमेट गैंगस्टर। ये वो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि अतीक भले जेल में था लेकिन उसका बेटा, उसका जो गैंग था उसको वो आगे बढ़ा रहा था। और उसके बाद फिर तस्वीर आती है जो 1 महीने पहले की, पूरे यूपी, पूरे देश ने देखा कि असद बकायदा एक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर उमेश पाल का मर्डर कर रहा है, यूपी पुलिस के लोगों को गोली मार रहा है। अरविंद, उससे पहले बरेली जेल में जाते हुए दिखते हैं सीसीटीवी फुटेज में जो कैप्चर्ड है। सो इट क्लियरली शोज दैट ही वाज नॉट जस्ट एनी इंडिविजुअल और अ सन ऑफ अ गैंगस्टर, ही वाज अ गैंगस्टर हिमसेल्फ। अरविंद, प्लीज स्टे ऑन विद मी, हमारे साथ बने रहें बिकॉज देयर इज मोर न्यूज कमिंग इन। Atiq Ahmed's killing and the encounter of his son Asad, there have been of course many reactions to it. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched a scathing attack at the previous Samajwadi Party government, declaring that Uttar Pradesh is now a mafia-mukt. Attending a public meeting in Uttar Pradesh's Saharanpur, Chief Minister Yogi Adityanath took a jibe at the previous government, claimed that Uttar Pradesh is very safe now. He has claimed no danga, sab kuch changa in Uttar Pradesh. Yogi Adityanath further lauded that law and order situation in the state and said that the state has become an example for the entire country, which is not the case during the previous governments. आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती।
माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। The hunt for Mafia, Atiq Ahmed's wife now, Shaista Parveen, that search is also on, and she's not just a wife, she was as much involved with the gang and the cartel. The Uttar Pradesh Special Task Force is focusing on nabbing those who could be assisting and helping her. The government is likely to raise the bounty on Shaista presently at 50,000 rupees to 1 lakh rupees to reward anyone who can give whereabout information. Remember, Shaista, who is the widow of Atiq Ahmed, is one of the prime accused in the Upesh Pal murder case. Along with that, STF is also digging up details about all those who could be helping them, and that in Lucknow. Meanwhile, a political slugfest has erupted. Taking a jibe at Akhilesh Yadav, UP Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has termed Samajwadi Party's previous government as Jungle Raj rule. He went on to question Samajwadi Party links with the now killed on Atiq Ahmed. शाइस्ता को लेकर आप देख रहे हैं लगातार पुलिस की धरपकड़ चल रही है, क्या कहेंगे? वो पुलिस जो कानूनी कार्रवाई पुलिस को करना है, पुलिस कर रही है, उस पर कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कोई भी प्रकरण अभी जो उमेश पाल हत्याकांड से रिलेटेड है वह पुलिस अच्छे से काम कर रही है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जांच करने वाली टीम है, मजबूत टीम है, करेगी। So let's go across to Arvind Oja for the latest on that. Arvind, आप ना ही सिर्फ ये इंसिडेंट कवर कर रहे हैं, आप बहुत सालों से अतीक अहमद का जो गैंग था, कार्टल था, उसकी भी आपके पास बहुत जानकारी है। तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि काफी सवाल उठेंगे कि शाइस्ता के पीछे क्यों पुलिस पड़ी है, एसटीएफ क्यों पड़ा है। तो आप हमें बताइए कि क्या वो सिर्फ विडो उसको कहेंगे उनको, लेकिन क्या इन्वॉल्वमेंट भी थी उनकी गैंग के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इंडिया टुडे ने कुछ वीडियोस भी एक्सेस किए शाइस्ता के। ये क्लियर है कि अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन जो पूरा उस गैंग को लीड कर रही थी और जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि उस शाइस्ता लीड कर रही थी। एक वीडियो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है जिसमें इलेक्शन का वक्त है और जो शाइस्ता है वो बकायदा अतीक अहमद का पिक्चर जिसमें वो अतीक अहमद जेल में बंद है वो पिक्चर दिखाते हुए वोट मांग रही है। उमेश पाल मर्डर के केस की बात करें तो जो एविडेंस आए हैं उसके मुताबिक शाइस्ता जेल में मिलने गई थी अतीक अहमद से और अतीक अहमद ने कहा था कि वो कुछ सिम कार्ड खरीदे और दूसरे के नाम से वो सिम कार्ड खरीदे। उस सिम कार्ड का इस्तेमाल जो क्राइम है उसमें हुआ था। तो पूरी तरह से जो पार्टिसिपेंट है शाइस्ता का, खासतौर से उमेश पाल मर्डर केस में, वो सामने आया है, जिसके बाद ही शाइस्ता अचानक से अंडरग्राउंड हो गई। इस वजह से उसके सर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। पुलिस को यह लगा कि जो असद का इनकाउंटर हुआ उसके जनाजे में आएगी, लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद ये लगा कि अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद वो आएगी, लेकिन वो सामने नहीं आई। अभी भी वो फरार चल रही है। अगर शाइस्ता को सरेंडर करना होता तो वो कोर्ट या पुलिस के सामने आती, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सरेंडर नहीं कर रही है, वो एक क्रिमिनल की तरह भाग रही है। इस वजह से अब पुलिस की कोशिश है कि उसके सर पर जो इनाम है वो इनाम भी बढ़ा दिया जाए। तो कहीं न कहीं शाइस्ता जो पुलिस का दावा है कि वो पूरे गैंग को लीड कर रही थी जब अतीक और अशरफ जेल में बंद थे। Thank you so much. Arvind Oja is tracking all the latest on that. Since day one, Arvind has been in Prayagraj tracking different leads as well, speaking to different sources. Remember that Shaista Parveen was not just a wife or a widow of Atiq Ahmed. She was as involved in leading the gang also. Now this coming up is in India Today's big exclusive. India Today has found weapons like knife and clothes covered in blood stains inside the office of Atiq Ahmed. When the office was opened up, our colleague went in search to find what exactly was in that office, so to say. There were blood stains across the office of gangster turned politician. He was killed with his brother Ashraf, who was also a gangster turned neta in Prayagraj. But India Today's Samarth Srivastav brings you this exclusive report from inside the so-called office. यहाँ से आप स्पॉट अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये देखिए, ये स्पॉट जो है, जो एक महिला की पर्स है, महिला का दुपट्टा, महिला की चूड़ियां और अब एक महिला का यहाँ पर जो पर्स है, वो कई सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा यहाँ पर 1 से 2 दिन में क्या हो गया है, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले तक लगातार यहाँ चीजें नॉर्मल थी और जो धब्बे आप इस वक्त कैमरा में नीरज के कैमरे से देख रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो आखिर 1 से 2 दिन में क्या हो गया, और पुलिस ने कुछ चीजें बताई हैं बैक कैमरा कि ये देखकर ऐसा ही लगता है कि काफी नए हैं, यानी कि ये धब्बे जो खून के हैं ये कल रात या परसों के हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये
एक दिन के, ये काफी दिन पुराने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सवाल उठता है, ये स्टोव का आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, और करीब से मैं आपको लेकर चलूंगा, उस तरफ से लेकर चलूंगा जहां पर और अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ है। यहां आप आइए मेरे साथ, और ये देखिए आप यहां पर आप देखिए किस तरह से पूरी जो सामान है, पूरा जो सामान है वो अस्त व्यस्त है, और जो महिलाओं के कपड़े यहाँ पर पड़े हैं वो आप उस पर बार बार कैमरा की तरफ ले जा रहा हूं। यहाँ एक कुर्ती आपको नजर आएगी, जो कुर्ती है वो पड़ी है, जो दुपट्टा है वो पड़ा है, और अंदर आपको एक और कमरा यहाँ पर है। यहाँ मैं आपको लेकर चलने की कोशिश करूंगा, देखते हैं यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा कार्यालय का कनेक्ट करता है। ये जो डोर है यहाँ से बंद होता था और यहाँ से कार्यालय से कनेक्ट करता था, और ये वो दुपट्टा जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, यही वो दुपट्टा है। यानी कि दुपट्टा, वो कुर्ती, वो एक महिला की जो टूटी चूड़ियां पड़ी हैं यहाँ पर, वो, और उसके अलावा एक पर्स। तो ये किस ओर इशारा है, ये सोचने वाली बात है। शाइस्ता अभी तक फरार है, पुलिस की पकड़ से दूर है, और उस बीच में अगर अतीक अहमद का कार्यालय ही क्राइम सीन बन गया है तो शायद सवाल उठेंगे